Good morning, students. We'll discuss about the different stages of production with the help of MP and TP, or you can say this is the geometric relation of TP and MP. Okay, we have bifurcated the different stages in through different curves. Okay, so basically we know that there are three stages of production. One is stage of increasing returns, the other one is stage of diminishing returns, and the next one is last one is stage of negative returns. Okay, and in between we have discussed somewhere that when MP becomes constant, there is a stage known as stage of constant returns to a factor. Okay, that means every additional unit of labor contributes the same output to the total output as the previous labor contributed. Okay, that means कि एक एक्स्ट्रा जो लेबर यूनिट हमने लगाया है उसने उतना ही एक्चुअली उतना ही और एग्जैक्टली उतना ही यूनिट्स टीपी में या टोटल आउटपुट में ऐड किया है जितना पिछले वाले लेबर ने ऐड किया था। तो यहाँ पे हमारा एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर जो है उसने कांस्टेंट रिटर्न्स, दैट मीन्स कांस्टेंट रिटर्न्स दी हैं, मीन्स पहले वाले ने जितना आउटपुट ऐड किया था सेकंड वाले ने या फिर जो थर्ड या फोर्थ जो एडिशनल लेबर है उसने भी उतना ही ऐड किया है, तो एमपी कांस्टेंट हो गया है। तो ये स्टेज भी हमने ऐड की है यहाँ पे। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेज, that is increasing returns. This is our first stage, increasing returns to the factor. Okay, so in increasing returns to the factor, MP is increasing. Okay, basically MP increases, that's why TP increases with increasing rate. Okay, somewhere we have discussed in our last video that TP is the rate of sorry, MP is the rate of change in TP. Okay, TP जिस रेट से चेंज होगा वो रेट हमारी एमपी होगी। दैट मीन्स जितना चेंज एमपी में आएगा वही एग्जैक्ट चेंज टीपी होगा। ओके, सो एमपी इज द रेट ऑफ चेंज इन टीपी। अगर एमपी 10 यूनिट से इंक्रीज होगा तो टीपी में 10 यूनिट्स का इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, और अगर एमपी 8 यूनिट्स से डिक्रीज होगा दैट मीन्स एक एडिशनल लेबर अगर 8 यूनिट्स कम प्रोड्यूस करता है पहले वाले के मुकाबले, फॉर एग्जांपल प्रीवियस वन ने 20 यूनिट्स कंट्रीब्यूट किए थे टीपी में, the second one contributes 12 units, okay, to TP. Clear? So this is contributing 20 units and this additional labor is contributing 12 units. That means here TP will be increasing because the additional labor is contributing, okay, contributing some units but lesser or less units than the previous ones. Okay, so TP will be increasing but the rate of increment is lesser. Okay, lesser units are being contributed by the additional unit. पहले वाले ने 20 units और इसने 12 units, तो obviously percentage जो है इसकी कम होगी. Okay, that's why TP will be decreasing. This is our second stage. Okay, increasing returns means if we reverse it, first one is contributing 12, the second one is contributing 20, the third one is contributing 30. Okay, in this case the rate of increment is higher for or with every additional unit of labor. That's why the first stage of increasing returns exists. Okay, in this stage MP increases, that means every additional unit of labor. Okay, here we are taking the units of laborers on O x-axis and here is MP. That means we know MP is the addition to TP or addition made to TP when an extra or additional labor unit is being used or implemented. Okay, जब एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ लेबर जब हम वहाँ पे लगाते हैं किसी भी काम पे, तो उस एडिशनल या उस एक्स्ट्रा लेबर ने टोटल आउटपुट में टोटल प्रोडक्शन में कितना कंट्रीब्यूट किया उस एक्स्ट्रा लेबर ने। ओके, वही हमारा एमपी होता है। ओके, तो एडिशन मेड टू टीपी when an additional unit of labor is being used is MP. So if this is the first laborer, the second, the third and fourth laborer. Okay, सो फर्स्ट ने कितना कंट्रीब्यूट किया, सेकंड ने कितना कंट्रीब्यूट किया, थर्ड ने कितना कंट्रीब्यूट किया एंड फोर्थ ने कितना कंट्रीब्यूट किया। ओके, ये हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्ट है। सपोज फर्स्ट ने कंट्रीब्यूट किया 8 यूनिट्स। ओके, दैट मीन्स ज़ीरो था
जब एक भी लेबर नहीं थी यूनिट, तब हमारा आउटपुट 0 था। फर्स्ट लेबर ने 8 यूनिट्स कंट्रीब्यूट किया है। ओके, सेकंड लेबर जो है वो मींस ज़्यादा, क्योंकि इंक्रीजिंग रिटर्न्स हैं, तो दैट मींस वो रेट जो है हमारी ज़्यादा होगी। दैट मींस सिंपल सी बात है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स में the additional labor unit will be contributing or producing more units than the previous one. Okay, एक सिंपल सा लॉजिक है इंक्रीजिंग रिटर्न्स में कि जो एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर हम लगा रहे हैं वो पिछले वाले लेबर यूनिट से ज़्यादा यूनिट्स कंट्रीब्यूट करेगा, तभी इंक्रीजिंग रिटर्न्स होंगी। फॉर एग्जांपल, अगर फर्स्ट ने 8 यूनिट्स कंट्रीब्यूट की हैं, तो दैट मीन्स इसने 8 यूनिट्स प्रोड्यूस की हैं। तो सेकेंड लेबर, ओके, keep remember here we are taking MP, okay, and on OY axis also we are taking MP, okay। टोटल प्रोडक्शन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इस कर्व में, तो हम यहाँ पे ये सेकंड यूनिट पढ़ेंगे, ना कि 2 यूनिट्स ऑफ लेबर पढ़ेंगे। ओके, यहाँ पे थर्ड यूनिट ऑफ लेबर पढ़ेंगे, यहाँ पे फोर्थ यूनिट ऑफ लेबर पढ़ेंगे। ओके, तो सेकेंड यूनिट जब हमने यूज़ की तो 8 से ज़्यादा हमें कंट्रीब्यूट करेगा। ओके, वो 10 हो सकता है, 12 हो सकता है। ओके, दैट मीन्स 10 यूनिट्स। क्लियर? इट डजेंट मीन दैट 2 यूनिट्स ऑफ लेबर्स प्रोड्यूस्ड 10 यूनिट्स। अगर मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि 2 यूनिट्स ने मिलकर 10 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं, नहीं, ये सेकेंड यूनिट का प्रोडक्शन है। फर्स्ट यूनिट ने 8, first unit of labor or first laborer produced 8 units and second laborer produced 10 units। okay, first ने 8 units दिए हैं, second ने 10 दिए हैं, दो ने 10 नहीं दिए हैं। ओके, सेकंड ने 10 दिए हैं, थर्ड उससे ज़्यादा देगा 12 यूनिट्स, फोर्थ उससे ज़्यादा देगा। only then MP will be increasing, okay, or the rate of change in TP will be increasing। okay, अब इस MP को हम TP पे लेके जाएंगे टोटल प्रोडक्शन में। ओके, ऐड करेंगे, दैट मीन्स हर एक एडिशनल यूनिट का जो आउटपुट है हम ऐड करेंगे, तो वो हमारा TP बन जाएगा। हाउ? फॉर एग्जाम्पल, टेक 1 यूनिट ऑफ लेबर। हाउ मेनी यूनिट्स were being produced by 1 unit? 8 units। okay, this is 8। when we take another unit of labor, okay, now we are taking the graph of TP, so this another unit will be called 2 units of labor, not the second unit। 1 unit of labor, 2 units of labor। okay, so when additional unit, the second unit, when we have applied in this second unit, or the output produced by this second unit will be accumulated with the output of first unit, that is 8। ओके, दैट मीन्स कि जब हमने एक एडिशनल यूनिट, सेकेंड यूनिट ऑफ लेबर जब वहाँ पे लगाया, तो इस सेकेंड यूनिट के आउटपुट में हम फर्स्ट यूनिट का आउटपुट ऐड करके OY एक्सिस पे दिखाएंगे TP में। ओके, सो फर्स्ट ने 8 दिया था, सेकेंड ने 10, तो टोटल कितना हो गया? 18। दैट मीन्स 2 यूनिट्स ने 18 यूनिट्स, दो लेबरर्स ने मिलके 18 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं। जब हम थर्ड लेके चलेंगे, ओके, तो यहाँ पे हम इसको 3 पढ़ेंगे। ओके, इट विल बी कॉल्ड एज 3 यूनिट्स ऑफ लेबर्स, क्योंकि वी आर बिकॉज वी आर टेकिंग टोटल प्रोडक्ट। ओके, टोटल आउटपुट या टोटल प्रोडक्ट, दैट मीन्स ये क्या है? सम टोटल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ओके, तो ये थर्ड नहीं होगा, ये 3 होगा, तीनों ने मिलके कितना प्रोड्यूस किया। तो हम दो, जो 2 का आउटपुट था, 2 लेबर्स का जो आउटपुट है, द आउटपुट ऑफ 2 लेबर्स और द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय 2 लेबर्स और यूनिट्स ऑफ आउटपुट produced by 2 laborers will be accumulated with the third one, it will become the output of 3 laborers। okay, तो अब ये 3 laborers का आउटपुट बन जाएगा यहाँ पे हमारा कुछ इस तरीके से। ओके, कर्व के अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे तो पॉइंट यहाँ पे हमें कुछ दिखाना है। ओके, तो हम कर्व इस तरीके से भी लेके चल सकते हैं। क्लियर? इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट यहाँ पे हम कर्व को डिफाइन करें कि यूनिट वाइज। ओके, जब हम ज्योमेट्रिकल रिलेशनशिप दिखा रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कर्व को हम पॉइंट टू पॉइंट डिफाइन करें। ओके, कर्व का हम सिर्फ शेप दिखाएंगे ज्योमेट्रिकल रिलेशनशिप में। ओके, मैं यहाँ समझाने के लिए ले रहा हूँ कि 8, 18 देन 12 ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 30। ओके, टोटल 3 यूनिट्स ने मिलके 30 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं। ओके, सो दिस वॉज द स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। फर्स्ट स्टेज था इंक्रीजिंग रिटर्न। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, MP के अकॉर्डिंग TP चलेगा। दैट मीन्स एवरी एडिशनल यूनिट, ओके, 1 2 3। ओके, in MP we will be considering it first unit, second unit of labor, third unit of labor, not 1 unit, 2 units,
3 यूनिट्स. ओके, सो फर्स्ट यूनिट ने कितना कंट्रीब्यूट किया, सेकंड ने कितना किया और थर्ड ने कितना किया. ओके, कीप रिमेंबर एवरी एडिशनल यूनिट विल बी कंट्रीब्यूटिंग मोर टू टोटल आउटपुट देन द प्रीवियस वन. हर एक्स्ट्रा लेबर यूनिट जो है पहले वाले के मुकाबले ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही होगी, तभी एमपी इंक्रीज होएगा. द नेक्स्ट स्टेज इज स्टेज ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स. इसको हम थर्ड नंबर पे भी डाल सकते हैं बिकॉज कांस्टेंट रिटर्न्स जो है एमपी जो है वो कांस्टेंट दिखाएगा. हम इसको थर्ड स्टेज पे भी दिखा सकते हैं, थर्ड नंबर पे भी दिखा सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्रिक रिलेशनशिप अगर हम इसको ग्राफ्स को क्यूमुलेट करते हैं किसी एक ग्राफ को ही, लाइक मैं एमपी को ही अगर एक बार दिखाता हूँ तो कुछ एमपी कर्व हमारा किस तरीके से होगा, इस तरीके से जाएगा. ओके, सो इंक्रीजिंग देन बिकम्स कांस्टेंट देन डिक्लाइन. ओके, इन स्टेजेस के अकॉर्डिंग हमने इसको सेकंड स्टेज पे लिया है, सेकंड नंबर पे लिया है, क्योंकि इंक्रीज होने के बाद जब वो डिक्रीज होता है तो इस इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बीच में ही समवेयर कांस्टेंट रहा होगा अपने मैक्सिमम पे. ओके, दैट्स व्हाई वी हैव टेकन एमपी कांस्टेंट एट द सेकंड नंबर. So stage of constant return says that MP remains or becomes constant. That means every additional unit of labor, okay, that means first unit, second unit, third unit contributes the same level of output to the TP. Okay, that means जितना first ने produce किया से 10 units, second जब हमने लगाई तो उसने भी 10 units ही produce किए. ओके, ये एक्स्ट्रा नहीं है, 10 यूनिट्स ही प्रोड्यूस किए उसने भी. और जब हमने थर्ड यूनिट ऑफ लेबर, ओके 3 यूनिट्स नहीं है ये एमपी है तो इसको हम थर्ड यूनिट ऑफ, जब हमने थर्ड यूनिट ऑफ लेबर वहाँ पे लगाया तो इसने भी हमें 10 यूनिट्स ही प्रोड्यूस करके दिया. ओके, दैट मीन्स फर्स्ट ने भी 10 कंट्रीब्यूट किया, सेकंड ने भी 10 कंट्रीब्यूट किया, थर्ड ने भी 10 कंट्रीब्यूट किया. सो इफ़ वी स्टडी द टोटल आउटपुट ऑफ 3 यूनिट्स, अगर 3 यूनिट्स ऑफ लेबर्स का टोटल आउटपुट हम कंसिडर करेंगे तो टोटल आउटपुट कितना होगा, इट विल बी कॉल्ड एज 30 यूनिट्स. ओके, 30 यूनिट्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द 3 यूनिट्स ऑफ लेबर्स. ओके, इफ वी टॉक अबाउट द 2 यूनिट्स ऑफ लेबर्स, द 20 यूनिट्स विल बी प्रोड्यूस्ड, 1 यूनिट 10. ओके, 1 यूनिट ऑफ लेबर प्रोड्यूस्ड 10 यूनिट्स, 2 यूनिट्स ऑफ लेबर्स प्रोड्यूस्ड 20 यूनिट्स, 3 laborers or 3 units of laborers produce 30 units. That means if we find out the margin between every additional labor of output, the margin will be the same, 10 10 and 0 to 10 also 10. Okay, that means every additional unit contributed equal units of output to the total production. Okay, this is constant MP. When the MP becomes constant, that means every additional unit of labor contributes equal to the TP. The TP curve rises at the angle of 45 degree. Okay, TP curve जो है rise होगा 45 degree के angle पे. That means वहाँ पे constant returns जा रही होंगी. ठीक है, तो equal ये जो gap होगा हर एक unit का 1 2 3, तो ये जो gap होगा ये equal होगा इनके बीच का, क्योंकि तीनों यूनिट्स ने इक्वल यूनिट्स ही आउटपुट की ऐड की है. तो दैट मीन्स उनके बीच जो टोटल आउटपुट जो है वो कांस्टेंट गैप से या कांस्टेंट मार्जिन से ही इंक्रीज हो रहा होगा. 10 का ही डिफरेंस यहाँ पे होगा, 10 का ही यहाँ पे होगा और 10 का ही टीपी में यहाँ पे होगा. से 10 20 एंड 30. क्लियर? तो 10 का ही डिफरेंस है क्योंकि हर एक एडिशनल यूनिट ने इक्वल कंट्रीब्यूट किया है. ओके, दिस इज द स्टेज ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स. एंड कीप रिमेंबर एमपी कांस्टेंट होता है एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट. ठीक है, अपने हाईएस्ट पॉइंट पे ही जाके वो कांस्टेंट होता है, उसके बाद वो डिक्लाइन करना शुरू कर देगा. नाउ कम्स द स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स. ओके, द स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स वेयर MP starts declining. Okay, MP decrease होना start हो जाता है. That means if MP decreases, that means every additional unit of labor contributes lesser units to the TP. Okay, लेबर की जो एक एक्स्ट्रा यूनिट हमने यूज़ की है वो अपने पिछले यूनिट ऑफ लेबर
या पिछले लेबर के मुकाबले कम कंट्रीब्यूट करेगी या कम प्रोड्यूस करेगी पिछले, या फिर हम कहें जब दो लेबरर्स थे तो फर्स्ट लेबर जो है 10 यूनिट्स प्रोड्यूस किया, सेकंड लेबर ने 18 यूनिट्स प्रोड्यूस किया, तो जो थर्ड लेबर होगा ओके वो 18 से कम प्रोड्यूस करके देगा, वो 12 भी हो सकता है, वो 14 भी हो सकता है। ओके, तो थर्ड लेबर प्रोड्यूस्ड 14 यूनिट्स, सेकंड प्रोड्यूस्ड 18 यूनिट्स, दो ने नहीं, सेकंड कह रहा हूँ मैं, सेकंड प्रोड्यूस्ड 18 यूनिट्स एंड द थर्ड लेबर प्रोड्यूस्ड 14 एक्स्ट्रा यूनिट्स। ओके, तो सेकंड प्रोड्यूस्ड 18 एक्स्ट्रा यूनिट्स, फर्स्ट ने 10 एक्स्ट्रा, सेकंड ने 18 एक्स्ट्रा and third ne 14. Okay, so third one is contributing lesser than the second one. Okay, in this case the margin of the third contracted comparatively. Okay, second के comparison में इसका जो margin है वो contract हो गया, कम हो गया है. Okay, this is stage of diminishing returns when MP decreases. That means every additional unit of labor contributes lesser than the previous one. पहले के मुकाबले, अब fourth unit होगी वो third के मुकाबले कम produce करेगी, से 10 units produce किया है इसने. Okay, so this is the stage of diminishing returns. When MP decreases, TP rises but at a डिक्रीजिंग रेट. ओके, दैट मीन्स टीपी राइज तो करेगा क्योंकि फर्स्ट यूनिट हम बोले हैं 10 यूनिट्स कंट्रीब्यूट किया है, तो टीपी कितना है 10, अकेली एक यूनिट ऑफ लेबर थी तो टोटल प्रोडक्शन कितना होगा अकेले का 10. सेकंड यूनिट प्रोड्यूस्ड और कंट्रीब्यूटेड 18 यूनिट्स. ओके, तो टीपी कितना होगा फर्स्ट और सेकंड का मिला के 28, थर्ड का हमने 14 लिया था. ओके, सो 28 प्लस 14 क्योंकि थर्ड तीनों का मिला के टीपी होएगा तो हमारा इट विल बी 42. Fourth 10 units, it will be 52. Okay, see MP is decreasing 10 18 14 10. Okay, यहाँ से MP decrease होता है 18 14 and 10. Okay, this is declining MP, but TP still rises. Okay, TP still rises from the second or second onward units of labor. TP is still rising 28 42 and 52. Okay, this is the stage of diminishing returns. In the stage of diminishing returns, it doesn't mean if the stage of diminishing returns exist, it doesn't mean that TP decreases. Okay, we have already discussed the stages ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर डिपेंड्स ऑन एमपी. ओके, ये डिसाइड होती है, डिटरमाइन होती है एमपी के अकॉर्डिंग. ओके, एमपी में जो चेंज आएगा वही स्टेज हमारी बन जाएगी. ओके, जब एमपी इंक्रीज होगा तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स की स्टेज आएगी क्योंकि हम रिटर्न्स टू फैक्टर की, एक फैक्टर हमें कितना रिटर्न दे के जा रहा है वो हम पढ़ रहे हैं, तो एक फैक्टर का जो रिटर्न है वो एमपी ही बताता है. ओके, मार्जिन कितना आया. क्लियर. तो डिमिनिशिंग रिटर्न्स में टीपी तो इंक्रीज होगा बट रेट ऑफ इंक्रीमेंट डिक्रीज होती जाएगी. ओके, 18 से इंक्रीज हुआ, 14 से इंक्रीज हुआ, 10 से इंक्रीज हुआ, ऑब्वियसली जो रेट है परसेंटेज है वो डिक्रीज हो जाएगी. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स. द नेक्स्ट वन इज स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स. इन दिस स्टेज MP becomes negative. Okay, जीरो एंड नेगेटिव. जीरो हो जाता है दैट मीन्स एडिशनल यूनिट. अगर MP जीरो है इसका मतलब है जो एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर हमने यहाँ पे लगाया है उसने कोई भी एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन नहीं किया है, उतनी ही यूनिट्स प्रोड्यूस हुई हैं. 5 ने भी उतना ही प्रोड्यूस किया 40 यूनिट्स, और छठी यूनिट लगाई तो 6 ने भी 40 यूनिट्स. ये छठी यूनिट का नहीं है, 6th यूनिट का नहीं है. दिस इज the total output of 6 units. This is the total output of 5 units. That means 5 लेबर्स भी मिलके 40 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे और 6 लेबर्स ने भी मिलके 40 यूनिट्स ही प्रोड्यूस किया. ओके, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा एडिशन नहीं हुआ. दैट मीन्स एक्स्ट्रा लेबर तो आया लेकिन उसने टोटल प्रोडक्शन में कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं किया, उतना ही प्रोडक्शन हुआ, तो MP हमारा ज़ीरो हो गया. ओके, जब MP ज़ीरो होगा तो वहाँ पे हमारा TP जो है मैक्सिमम होगा. ओके, TP will be it's at हाईएस्ट और मैक्सिमम पॉइंट. ओके, टीपी अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होगा और उसके बाद से वो डिक्लाइन करना शुरू कर देगा. ओके, और जब एमपी ज़ीरो है तो टीपी अपने हाईएस्ट पे भी है और टीपी वहाँ पे कांस्टेंट भी है. दैट मीन्स पहले भी उतना ही यूनिट प्रोड्यूस हुआ जैसे अभी अभी हमने डिस्कस किया कि 40 यूनिट्स ही 5 लेबर्स ने और 40 यूनिट्स ही
6 लेबर्स ने प्रोड्यूस किए, तो टीपी कांस्टेंट भी है और यहीं पे वो मैक्सिमम भी होगा क्योंकि इसके बाद वो डिक्रीज करेगा क्योंकि एमपी नेगेटिव हो गया है हमारा, ठीक है। तो वो 38 या 32 बन जाएगा टीपी कि 7 यूनिट्स 32 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही हैं, ओके। तो जब एमपी नेगेटिव होता है तब हमारा टीपी डिक्लाइन करना शुरू कर देता है, ओके। दिस इज द स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स। नाउ विल बी कंसिडरिंग द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। एक टेबल आती है, ठीक है, इनकम्प्लीट टेबल या मिसिंग फिगर्स जिसको हम कह सकते हैं। उस टेबल को हमें अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला पूरा करना होता है, कंप्लीट करना होता है, ओके। सो इन टेबल हमें जो टी पी एम पी एंड ए पी गिवन होंगे, लेबर यूनिट्स गिवन होंगी एंड कुछ फिगर्स हमारे पास मिसिंग होंगे। वो मिसिंग फिगर टी पी में से, ए पी में से, एम पी में से, सब में से हो सकते हैं, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. Here we are given the table, and in this table in the first column the land or the fixed factor is given, okay. हमें fixed factor से कुछ नहीं लेना है, it will not make any change in the question. Either it is given or not, doesn't matter, okay. The second column shows the labor, or we are given the labor units in the second column, okay. The third column shows total production. The fourth is AP, average product, and the last one is MP, marginal product, okay. So here we are given some figures and some are missing, so we will have to calculate according to the formula. So first of all we should know what are the formulas to calculate the different productions. See, TP, टीपी को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है एमपी के अकॉर्डिंग और एपी। दैट मीन्स विद द हेल्प ऑफ एमपी भी हम टीपी कैलकुलेट कर सकते हैं और एपी के हेल्प से भी हम टीपी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखेंगे हमें वैल्यू क्या दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला पुट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एपी के अकॉर्डिंग लें तो हम एपी का फॉर्मूला पुट करते हैं। एपी गिवन है, जो गिवन है उसी का फॉर्मूला हम पुट करेंगे। तो एपी गिवन है, सो एपी एवरेज प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू टीपी ओवर एल, ओके। लेबर यूनिट से डिवाइड करते हैं वेरिएबल, क्योंकि वही फैक्टर चेंज हो रहा है, फिक्स चेंज नहीं हो रहा, तो एवरेज चेंज फैक्टर का ही निकलेगा जो फैक्टर चेंज हो रहा है, एडिशन जिसमें आ रहा है, ओके। तो हमने एपी का फॉर्मूला पुट किया, एपी इज इक्वल्स टू टीपी डिवाइडेड बाय एल। एपी की वैल्यू गिवन है, वैल्यू पुट करेंगे, टीपी निकालना है, ठीक है। टीपी हमारे पास नहीं है, लेबर है, ओके। तो दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास टीपी आ जाएगा। तो एपी की हेल्प से हम इस तरीके से निकाल सकते हैं टीपी की वैल्यू। दूसरी तरफ अगर हमें एमपी गिवन है, ओके, तो एमपी की हेल्प से हम कैसे निकालेंगे टीपी। एमपी का फॉर्मूला पुट कर दो, एमपी इज इक्वल्स टू डेल्टा टीपी ओवर डेल्टा एल, ओके। चेंज इन टोटल प्रोडक्शन कि पहले के मुकाबले टीपी में क्या चेंज आया, और चेंज इन लेबर, कितनी यूनिट्स चेंज हुई है लेबर की, या फिर टीपी एन माइनस TPN-1, ओके। दोनों में से कोई भी फॉर्मूला हम पुट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, व्हेन 0 यूनिट्स ऑफ लेबर्स वर बीइंग यूज्ड, आउटपुट 0, क्योंकि वेरिएबल फैक्टर कुछ भी नहीं था तो लैंड या फिक्स्ड फैक्टर का यूज़ हुआ ही नहीं, क्योंकि फिक्स्ड फैक्टर अपने आप यूज़ नहीं होता है, उसके ऊपर वेरिएबल फैक्टर लगाए जाते हैं उसको यूज़ करने के लिए। तो कोई भी वेरिएबल फैक्टर नहीं था, तो टोटल आउटपुट 0 था। when we implied 1 unit of labor total output, that means उस 1 unit of labor ने कुछ प्रोड्यूस किया तो टोटल आउटपुट 60 है, ओके। तो टीपी हमें गिवन है, हमें निकालना है एपी। एपी का फॉर्मूला था हमारे पास टीपी ओवर एल, ओके। तो टीपी 60 है, एल है 1, तो टीपी डिवाइडेड बाय एल, 60 डिवाइडेड बाय 1, एपी हो जाएगा हमारा 60, ओके। अब हम एम पी कैलकुलेट करेंगे, एम पी इज द डिफरेंस, दैट मीन्स डेल्टा टी पी ओवर डेल्टा एल, ओके। एम पी का फॉर्मूला अगर हम पुट करें दैट इज डेल्टा टी पी ओवर डेल्टा एल, दैट मीन्स चेंज इन टी पी, ओके। टी पी में कितना चेंज आया है, 0 to 60, ओके। डेल्टा टी पी हो गया 60 पुट कर दिया हमने। डेल्टा एल, लेबर में कितना चेंज आया, 0 to 1 यूनिट, सो एम पी भी हमारा 60 हो गया, ओके। यहाँ पे 0 ही था, ये भी ओके, कुछ भी प्रोड्यूस नहीं हुआ था, तो एपीएमपी 0 ही रहेंगे। नेक्स्ट सेकेंड यूनिट ऑफ लेबर पे हम आते हैं। हमें टीपी नहीं गिवन है, एपी गिवन है और एमपी भी नहीं गिवन है। तो सबसे पहले हम टीपी निकालेंगे, क्योंकि एपी की हेल्प से, एवरेज की हेल्प से मार्जिनल नहीं निकलेगा,
टोटल की हेल्प से मार्जिनल निकलेगा, तो एवरेज की हेल्प से हम टीपी निकाल लेंगे। तो एपी का फॉर्मूला पुट करो, एपी इज इक्वल्स टू टीपी ओवर एल। एपी की वैल्यू है 85, पुट किया। टीपी है हमारा गिवन नहीं है, टीपी एज इट इज रखो। एल है हमारा 2 यूनिट्स, ओके। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 85 इंटू 2 170, ओके। तो टीपी आ गया 170, ओके। टीपी की वैल्यू हमने यहाँ पे 170 पुट कर दी, ओके। सो टीपी भी है, एपी भी है, एमपी नहीं है। तो टीपी की हेल्प से हम एमपी निकाल लेंगे, डेल्टा टीपी ओवर डेल्टा एल इज इक्वल्स टू एमपी, ओके। सो डेल्टा टीपी कितना हुआ 62, 170, 110। डेल्टा एल कितना हुआ 2 2 3 1 110, ओके। एमपी की वैल्यू हमारी आ गई 110, तो यहाँ पे हमारा एमपी हो गया 110, ये था 170, ओके। नेक्स्ट टीपी है हमारा थर्ड यूनिट ऑफ लेबर पे, गिवन नहीं है। एपी भी गिवन नहीं है हमारे पास, हमें गिवन है एमपी, ओके। तो एमपी की हेल्प से हम सबसे पहले टीपी निकालेंगे, क्योंकि एपी नहीं निकलेगा एमपी की हेल्प से। एमपी गिवन है, टीपी निकालो, ओके। सो एमपी जो गिवन है उसका फॉर्मूला हम पुट करेंगे। एमपी का फॉर्मूला पुट करते हैं हम, एमपी इज इक्वल्स टू डेल्टा टीपी ओवर डेल्टा एल। एमपी गिवन है हमें 100, डेल्टा टीपी हमें नहीं गिवन है क्योंकि टीपी है ही नहीं, तो चेंज नहीं निकाल सकते। सो डेल्टा टीपी एज इट इज रहेगा। डेल्टा एल है हमारे पास 1 यूनिट, हम सिर्फ एक एक ही बढ़ाते जा रहे हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा टीपी आ जाएगा हमारे पास 100, ओके। दिस इज डेल्टा टीपी, चेंज इन टीपी आया है, ये जो 100 आया है ये डेल्टा टीपी है, चेंज इन टीपी, ओके। टीपी नहीं है तो इस 100 को हम एज इट इज नहीं लिख सकते, ये चेंज इन टीपी है, ओके। इससे पहले हमारा टीपी था 170, ओके। यहाँ पे हमारा टीपी आया था 170। अब कितना आया है चेंज होके टीपी हमारा कितना 100, दैट मीन्स 270। टीपी में 100 का चेंज आया है, ऐड हुआ है, एमपी 100 है, दैट मीन्स ऑब्वियसली 270। हम बिना फॉर्मूले भी पुट किए निकाल सकते थे इसको कि चेंज है एमपी, ओके। तो टीपी में ऐड कर दो 100, 270। नेक्स्ट टीपी गिवन है, एपी और एमपी नहीं गिवन है, तो एपी और एमपी का फॉर्मूला पुट कर देंगे। टीपी ओवर एल, एपी आ जाएगा 340 ओवर 4, ओके। 4 से डिवाइड करेंगे, एपी आ जाएगा। एमपी 340 और 270 का डिफरेंस, ओके, 70 हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एमपी गिवन है, टीपी और एपी इसी की तरह निकाल लेंगे। मीन्स 340 में 40 ऐड करो, टीपी आ जाएगा, क्योंकि चेंज कितने का हुआ है 40 का हुआ है। 340 में 40 ऐड करो, टीपी आ जाएगा। देन एपी निकाल लेंगे, इसी तरीके से नेक्स्ट हम कर लेंगे, ओके। नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखी है। इट सेज complete the following table on the assumption that for each additional unit of the variable factor, that means each additional unit of the variable factor की हर एक additional unit क्या करती है, with each additional unit of variable factor marginal product decreases by 5 units of output, that means MP decreases, okay, MP is decreasing। जब हम एक extra labor unit लगाएंगे तो MP जो है decrease हो जाएगा, okay, that means TP increase होगा लेकिन decreasing rate से, okay, second stage है ये, okay। So it is saying MP will be decreasing by 5 units of output, okay। अब हमें यहाँ पे ना TP दे रखा है ना AP और ना ही लेबर यूनिट्स दे रखी हैं। MP सिर्फ हमें एक यूनिट का दे रखा है, दैट इज -5। वहीं से हम लेंगे कि जब MP हमारा -5 था, लेबर हम पहले डिफाइन कर देंगे इजीली, 1 2 3 4, ओके। 4 यूनिट्स ऑफ लेबर्स हमने यूज किए हैं 1 2 3 and 4। So when fourth unit of labor, okay, we are defining MP because we are given only one, MP is given only। So when fourth unit of labor is being implemented or used, MP was -5, that means negative returns। This fourth unit of labor reduced the TP, okay, TP को reduce कर दिया है 5 से और ये नेगेटिव है। अब वो कह रहा है कि every additional unit, each additional unit of the variable factor decreases the marginal produced or marginal product by 5 units। तो that means fourth ने 5 decrease किया है तो -5 हो गया,
थर्ड जो है फोर्थ के मुकाबले ज़्यादा दे रहा होगा। ओके, तो इसमें मैं ऐड कर देता हूँ क्योंकि एडिशनल ने रिड्यूस किया है। अब हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं। ओके, एडिशनल फोर्थ था, इसने रिड्यूस कर दिया। अब हम थर्ड के ऊपर जा रहे हैं, तो थर्ड ने फोर्थ से ज़्यादा प्रोड्यूस किया होगा क्योंकि रिड्यूस हो रहा है ये। तो फोर्थ पे आए तो रिड्यूस हुआ, थर्ड पे जाएंगे तो ऐड होएगा। तो -5 में मैं 5 ऐड कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा, -5 + 5 कैंसिल हो जाएगा, 0। दैट मीन्स थर्ड यूनिट ने कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया, वो 0 था। ओके, नथिंग, no more units were being contributed by the third unit to the TP. okay, MP 0 हो गया। सेकंड थर्ड से ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही होगी क्योंकि एडिशनल ने रिड्यूस किया है। तो सेकंड से थर्ड पे आएंगे तो रिड्यूस होगा, लेकिन थर्ड से सेकंड पे जाएंगे तो ऐड करेंगे। ओके, तो इसमें मैं 5 ऐड करता हूँ तो सेकंड ने कितने प्रोड्यूस किए होंगे, 5 यूनिट्स। इसी तरीके से फर्स्ट ने सेकंड से ज़्यादा प्रोड्यूस किए होंगे तो 5 में 5 ऐड करेंगे तो 10 यूनिट्स। ओके, एमपी कंप्लीट हो गया। अब एमपी की हेल्प से हम टीपी निकाल लेंगे। ओके, फर्स्ट यूनिट ने 10 यूनिट्स प्रोड्यूस की है तो टीपी कितना होगा, एक ही यूनिट ऑफ लेबर था तो टोटल भी आउटपुट 10 ही यूनिट्स था क्योंकि एक ही लेबर थी। ओके, सेकेंड लेबर जब आया तो उसने 5 और यूनिट्स, ठीक है, 5 मोर यूनिट्स वर कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द सेकेंड। एमपी हम बता रहे हैं तो सेकेंड का बताएंगे, टू का नहीं बताएंगे। सेकेंड यूनिट ऑफ लेबर कॉन्ट्रीब्यूटेड 5 मोर यूनिट्स। दैट मीन्स फर्स्ट ने 10 की तो सेकेंड ने 5 मोर, तो टोटल कितना हो गया, फर्स्ट और सेकेंड का मिला के 15। थर्ड ने कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं किया क्योंकि थर्ड ने 0 किया, तो थर्ड का 15 ही रहेगा टीपी। फोर्थ ने आके रिड्यूस कर दिया, दैट मीन्स फोर्थ ने कंट्रीब्यूट किया नेगेटिव में, तो ये -5 हो जाएगा तो 10। ओके, तो टीपी हो गया। इस तरीके से हम एपी निकाल लेंगे फॉर्मूला पुट करके। In the next one we are given TP, AP and MP and some are missing, so the same formula will be implemented जो भी हमने फर्स्ट में किया था। ओके, सो फर्स्ट 1 यूनिट ऑफ लेबर, TP 40 था, तो अकेली एक यूनिट लेबर थी तो टोटल आउटपुट 40 प्रोड्यूस हुआ, तो उसने कितना कंट्रीब्यूट किया होगा, ऑब्वियसली 40, या फिर फॉर्मूला भी पुट कर लेंगे हम जो गिवन है। ठीक है, तो TP की हेल्प से हम MP निकालेंगे, तो MP इज इक्वल्स टू, या जो निकालना है, और यू कैन से TP इज इक्वल्स टू समेशन MP। ओके, तो TP कितना है, 40 है, समेशन MP कितना है, 40। दैट मीन्स इससे पहले MP था ही नहीं तो ऐड किस में करोगे, 0 में, तो 0 + 40 अगेन MP 40 आएगा। या फिर हम MP का फॉर्मूला पुट कर देते हैं, MP इज इक्वल्स टू डेल्टा TP ओवर डेल्टा L। ओके, डेल्टा TP कितना, 0 to 40, 40, डेल्टा L कितना, 0 to 1, 1, सो 40 ही आया। और वैसे भी हम ऑब्जर्वेशन से भी देख सकते हैं कि 40 ही हुआ होगा, तो MP हमारा 40। नेक्स्ट हमें TP मिसिंग है बट MP गिवन है, तो MP की हेल्प से हम TP निकाल लेंगे। फॉर्मूला MP का पुट करेंगे, MP इज इक्वल्स टू डेल्टा TP ओवर डेल्टा L। MP इज इक्वल्स टू डेल्टा TP डेल्टा TP ओवर डेल्टा L। MP हमें गिवन है 60, डेल्टा TP नहीं गिवन है, डेल्टा L है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे डेल्टा TP आ जाएगा 60। ओके, दिस इज डेल्टा TP, चेंज इन TP आया है, तो TP पहले 40 था, अब चेंज होके मीन 60 का चेंज आया है। ठीक है, तो ऐड कर देंगे, चेंज होके 60 नहीं हुआ है, 60 एडिशन आया है, क्योंकि हम क्या पढ़ते हैं MP को, एडिशन मेड टू TP, तो एडिशन कितना हुआ, 40 + 60 100 हो गया। ओके, या फिर हम दूसरा फॉर्मूला भी पुट कर सकते हैं, TP इज इक्वल्स टू समेशन MP। ओके, तो यहाँ पे हमारा TP कितना होगा, समेशन MP 40 था MP यहाँ पे, तो समेशन करेंगे तो 100 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमें AP निकाल लेंगे। नेक्स्ट फोर्थ लेबर में हमें AP और MP मिसिंग है, TP गिवन है, तो AP आ जाएगा 180 ओवर 40 AP एंड MP 100 और 180 का डिफरेंस। ओके, 80 आ जाएगा हमारा MP। इसी तरीके से हम नेक्स्ट में TP, AP एंड MP निकाल लेंगे। ओके, तो ये कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स थी जो आप बाकी क्वेश्चंस में भी देखेंगे, तो इस तरीके से फॉर्मूला पुट करके हम इजीली इनको सॉल्व कर सकते हैं।